Good morning everyone. Welcome to the lecture of DOS. Today we are going to start a new chapter. The name of this chapter is a one-way slab. What is a slab? The slab is a plate element having a depth D, that is called capital D, very small as compared to its length and width. So slab is used as a floor or a roof in a buildings. So basically आप लोगों ने अपने घर पे फ्लोरिंग और रूफ देखा होगा, तो जो फ्लोरिंग और रूफ है उसको हम लोग स्लैब बोलेंगे. So slab may be a simply supported, continuous or a cantilever, right? There are number of types based on support conditions. So types of the slab based on support conditions are one-way slab, two-way slab, flat slab. Flat slab, that is a resting directly on a columns without a beam, and grid slabs, we can also say a waffle slabs. So we will see each type of the slab in a detail, and we will see a design consideration of this slab, how we can design this slab. So after in this lecture, in a today's lecture, we are going to study only theory part, and in the next lecture we will start example that is based on a one-way slab, one-way simply supported slab. So let's start. What is a one-way slab? So if the slab is supported by the beams on a two opposite direction, that is called one-way slab. So you can see in this figure, support 1 and support 2 is there, and these reinforcements are going in a two opposite directions. So in this type of the slabs, loads are transferred on a two opposite supports, support 1 and support 2. So the condition for a one-way slab is Ly by Lx should be greater than or equal to 2, right? If slab is supported on 4 slides, and if Ly by Lx is greater than or equal to 2, then that is called a one-way spanning slab. For any slab, if Ly by Lx, the slab has a tendency to bend in a both direction with increase of Ly. So the tendency of bending along Ly is reduced and that of Lx is increased. That's why when Ly by Lx is greater than 2, then slabs bends only in a x direction, right? अगर ये greater than 2 होगा तो slabs only x direction में ही bend होगा. So that's why the slab is called one-way slab. So in a one-way slab, main reinforcement is provided along the Lx, right? A shorter span. You can see in this figure the tendency of bending. So loads are carrying along a one direction, right? So when Ly by Lx is greater than 2, then slab is called a one-way slab. Next slab is, you can see in this figure, these are the main bars or cracked bars, and these all are the distribution bars or straight bars. This direction is Lx direction and opposite direction is the Ly direction. So after solving the example of one-way slab, we have to draw this kind of figure, and we have to show a main bars and distribution bars in this figure. Next is the two-way slab. So if slab is supported on a 4 edges, and if Lx by Ly by Lx is less than 2, then that is a two-way slab, right? The tendency of the slab is to bend in a both direction. Such slabs are called a two-way slabs. So two-way slab में क्या होगा कि आपका जो slab है वो both direction में bend होगा. So इसीलिए हमें जो main reinforcement provide करने हैं वो along with the Lx as well as along with the Ly हमें provide करने पड़ेंगे, right? So main reinforcement हम लोग 2 direction में provide करेंगे. In Lx मतलब कि shorter span, and in Ly longer span. That's why this is called a two-way slab.
The third one is the flat slab. So slab is directly supported on a column without beam. It is known as a flat slab. Flat slabs are provided to increase the floor height to permit the large amount of light which might be obstructed by a depth of beams. आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर की अगर पेरीफेरी में बीम होगा तो अंदर जो बाहर से लाइट आ रही है वो थोड़ी कम आएगी, ठीक है. लेकिन अगर हमें जो फ्लोर की हाइट है वो इंक्रीज़ करनी है और लाइटिंग बाहर से ज़्यादा अंदर आए, ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बीम प्रोवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्टली कॉलम के ऊपर स्लैब कंस्ट्रक्ट कर देंगे. ये फ्लैट स्लैब का एक एग्जांपल आपको कहाँ दिखेंगे फ्लैट स्लैब, तो पेट्रोल पंप अगर आपने देखे होंगे तो उसमें कॉलम के ऊपर ऐसे स्लैब बनाया होगा. सो उसका एग्जांपल आप लाइव देख सकते हो पेट्रोल पंप्स में. थर्ड वन है ग्रिड स्लैब. सो व्हेन स्लैब इज सपोर्टेड ऑन अ बीम्स विथ अ कॉलम्स only a periphery of the hall, it is known as the grid slab. Sometimes in a large hall, public place, marriage halls, auditorium, etc. the column free area is required, right? आप लोगों ने अगर देखा होगा कि आप कोई शादी में जाते हो तो मैरिज के हॉल्स जो होते हैं उसमें क्या होगा, मिनिमम कॉलम्स होंगे. आपको अगर मिनिमम कॉलम्स प्रोवाइड करने हैं तो हम लोग ये ग्रिड स्लैब प्रोवाइड कर सकते हैं. वहाँ पे पेरीफेरी में सिर्फ कॉलम आएंगे, बाकी आपका जो स्लैब है वो बीम के ऊपर रेस्ट करेगा, राइट. सो इन दिस केसेस द लार्ज डीप बीम्स मे बी परमिटेड बट द कॉलम्स आर परमिटेड ओनली ऑन अ पेरीफेरी. द ग्रिड स्लैब्स मे हैव अ रेक्टेंगुलर ग्रिड और अ डाया ग्रिड. डिफरेंस बिटवीन अ वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब. सो बेसिकली आप लोगों को डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर में दो टाइप के स्लैब पढ़ने हैं, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब. फ्लैट स्लैब आपको नेक्स्ट सेम में DRCS करके एक सब्जेक्ट आएगा तो उसमें आपको फ्लैट स्लैब पढ़ना है. सो अभी आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही स्लैब्स हैं, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब्स, राइट. सो लेट्स सी अ डिफरेंस बिटवीन अ वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब. सो the basic and most important difference between a one way slab and two way slab is if Ly by Lx is greater than 2 then we have to design as a one way slab, and if Ly by Lx is less than 2 then we have to design a slab as a two way slab. The second difference is the bending of the slab take place in a shorter direction only, and in a two-way slabs the bending of the slab take place in a both direction, in a Lx direction as well as in a Ly direction, right. So if bending is take place in a shorter direction only then we have to provide a main reinforcement in only a shorter direction, because हम लोग reinforcement क्यों प्रोवाइड करते हैं, बेंडिंग को रेजिस्ट कर पाए इसलिए. अगर सिर्फ बेंडिंग शॉर्टर डायरेक्शन में ही हो रहा है तो हमें रेनफोर्समेंट सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन में ही प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो दिस इज द थर्ड डिफरेंस. इफ बेंडिंग इज take place in a both direction then main reinforcement is provided along with the both directions. In a one way slab depth required is more and in a two way slab depth required is less, because यहाँ पे हम लोग मेन रेनफोर्समेंट ज़्यादा दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. सो हमें डेप्थ तो थोड़ी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी. As the thickness is more, the amount of the steel is also more and it is less economical. और यहाँ पे है as thickness is less, the amount of the steel is also less, so it is economical. डिफरेंस बिटवीन अ बीम एंड स्लैब. बीम और स्लैब के बीच में क्या डिफरेंस है, तो स्लैब इज एनालाइज्ड एज अ 1 मीटर वाइड बीम. नॉर्मली अ कंप्रेशन एनफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड इन अ स्लैब. हम लोग जो स्लैब की डिज़ाइन करेंगे उसको 1 मीटर वाइड बीम की तरह एनालाइज करेंगे, राइट. और स्लैब के अंदर कंप्रेशन एनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करने होते. आप लोगों ने बीम की डिज़ाइन देखी है जिसमें आप डबली बीम अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें हम लोग टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों बार्स प्रोवाइड करते थे, लेकिन स्लैब की डिज़ाइन में हम लोग कंप्रेशन बार्स प्रोवाइड नहीं करेंगे. द टेम्परेचर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द मेन रेनफोर्समेंट
and the thickness of the slab is very small as compared to beam. So you can see in this figure, this is the beam and ऊपर की साइड आप जो देख रहे हो वो स्लैब है. So thickness of the slab is very small as compared to beam, right? नाउ मिनिमम एनफोर्समेंट फॉर द स्लैब. मिनिमम एनफोर्समेंट के क्राइटेरिया क्या है स्लैब के लिए? हमें पता है कि ASC मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए PT मिनिमम अपन 100 इंटू BD, ये इक्वेशन है, जिसमें B हम लोग 1 मीटर वाइड कंसिडर करेंगे हर एक जगह पे. हम लोग एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे तो हर एक जगह पे B हम लोग क्या लेंगे? 1 मीटर, मतलब कि 1000 mm. एंड कैपिटल D क्या होगा? ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब. नाउ as per IS 456 clause number 26.5.2.1 page number 48, the minimum criteria for the slab, one way slab, are given. So if we are using a FE 415 steel or a FE 500 steel, then PT minimum will be a 0.12%. मतलब कि हम लोग अगर HYSD बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें PT मिनिमम 0.12% यूज करना है. और इफ वी आर यूजिंग FE 250, मतलब कि हम लोग अगर माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं तो हमें PT मिनिमम कितना प्रोवाइड करना है? 0.15%. ये है रेनफोर्समेंट ऑफ द वर्कवे स्लैब की डिटेल. देखो ये आपका बीम है, राइट, और ये है स्लैब. स्लैब की ओवरऑल डेप्थ है कैपिटल D और स्मॉल डेप्थ है. उसमें कैपिटल D में से हम लोग अगर ये माइनस कर दे कवर तो हमें स्मॉल d मिल जाएगा. ये आप देख रहे हो वो मेन स्टील है और ये डॉटेड जो दिख रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है और ये बेंट अप बार्स है. ठीक है, जो बेंट अप बार्स होते हैं उसको ऐसे बेंड किए होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं बेंट अप बार्स. जो स्पान होता है वो हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं? तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ दिस टू बीम्स, उसको बोलेंगे स्पान. ये उसका प्लान है, ये सेक्शन था. प्लान के अंदर हम लोग ये 1 मीटर स्ट्रिप लेके हम लोग डिजाइन करते हैं. ये LX डायरेक्शन है और ये है LY डायरेक्शन, राइट. नाउ वी विल सी वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब की डिजाइन कंसिडरेशन क्या क्या होती है. हम लोग अगर एग्जांपल करते हैं वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब का तो उसमें हम लोग क्या क्या सॉल्व करेंगे, राइट. सो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द इफेक्टिव डेप्थ. इफेक्टिव डेप्थ मतलब कि स्मॉल d. So how we can find out the effective depth? So for a deflection control L by D is equal to 20 into MF. ये 20 क्यों लिया है हम लोगों ने? क्योंकि सिंपली सपोर्टेड स्लैब है इसलिए. सो ये इक्वेशन है, ये आपको पेज नंबर IS 456 2000 पेज नंबर 37 क्लोज नंबर 26.2.1 आपको ये सारे क्लोज याद रखने हैं. ठीक है, आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करने बैठोगे एग्जाम में तो आपको IS कोड अलाउड है, वो लेके बैठना है. उसके अंदर आपको याद रखना है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा आपको इक्वेशन दिया है तो आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड स्लैब है इसलिए 20 से मल्टीप्लाई किया है. मॉडिफिकेशन फैक्टर, सो ये मॉडिफिकेशन फैक्टर हम लोग IS 456 पेज नंबर 38 पे एक फिगर दिया है. सो फिगर में आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे मैंने ली है वो फिगर. ये फिगर है मॉडिफिकेशन फैक्टर की, फिगर नंबर 4 जो आपको आगे के क्लोज में बताया है. सबसे पहले आपको टेंशन एनफोर्समेंट अज्यूम करने हैं. ठीक है, लेट्स से कि हम लोगों ने 0.6% अज्यूम किया, मतलब कि ये लाइन होगी हमारी, राइट. अब हमें क्या करना है कि ये FS फाइंड आउट करना है. कैसे? तो 0.58 इंटू FY इंटू एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड अपॉन प्रोवाइडेड. अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली ये करेंगे 0.58 इंटू FY. सो हमें डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जाएगी. अगर आपका FE 415 है, लेट्स से कि आपका FE 415 है तो 0.58 इंटू आप 415 करोगे तो आपको मिलेगी 240, मतलब कि FS 240. सो आपको ये लाइन को कंसीडर करना है और ये 0.6% है आपके और स्टील के. सो यहाँ से आपको अब आगे स्ट्रेट देखना है कि यहाँ पे आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना आ रहा है, राइट. तो ऐसे आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर ये फिगर में से फाइंड आउट करना है और ये फिगर आपको कहाँ पे दी है? IS 456 पेज नंबर 37 पे. ठीक है, सो
ये पूरा प्रोसीजर है एमएफ फाइंड आउट करने का। एमएफ अगर आपको मिल जाता है, ये देखो एफवाई अगर 250 है तो आपका एमएफ हो जाता है 145, एफवाई आपका 415 है तो आपका एफएस हो जाता है 240, और एफवाई आपका 500 है तो आपका एफएस हो जाएगा 290। ठीक है, अब हमारी सेकेंड स्टेप है इफेक्टिव स्पान। सो इफेक्टिव स्पान हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्लोज नंबर 22.2 उसके अंदर ए में जाना है, जो कि आपको दिया है पेज नंबर 34 पे। ठीक है, उसमें आपको दो क्राइटेरिया दिए हैं कि आपका इफेक्टिव स्पान क्लियर स्पान प्लस डी और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स, इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा वो आप लोगे इफेक्टिव स्पान। सो लेट्स से कि आपका क्लियर स्पान है 3000 और डेप्थ है आपकी 100, राइट, स्मॉल डी है 100, तो क्लियर स्पान आपका हो गया 3100 और सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स है आपका 3300। तो आप इफेक्टिव स्पान किसको कंसीडर करोगे, 3100 को, बिकॉज 3100 एंड 3300 में से स्मॉलर कौन सा है वो हमें यूज करना है। अंडरस्टैंड। अब थर्ड पोर्शन है रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपसे आगे डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग Fe 250 मतलब कि माइल्ड स्टील यूज कर रहे हो तो आपको 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस एरिया लेना है। ये है मिनिमम रेनफोर्समेंट की डिटेल, राइट, जो आपको IS 456 पेज नंबर 48 पे दी है, क्लोज नंबर 26.5.2.1 पे। और अगर आप Fe 415 या Fe 500 यूज कर रहे हो तो आपके परसेंटेज ऑफ द स्टील हो जाएंगे 0.12%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है मैक्सिमम डायामीटर फाइंड आउट करने का। तो मैक्सिमम डायामीटर ऑफ द बार शुड नॉट बी मोर देन 1/8 ऑफ द कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी मतलब कि ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब। सो यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज द कैपिटल डी। सो आपकी जो कैपिटल डी है उससे उसका 1/8 जो होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार। मतलब कि आप जब भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो नंबर वो डायमीटर ऑफ द बार चूज करोगे तो उसको आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि वो हमारा 1/8 ऑफ द डेप्थ से कम है ना। अगर ज़्यादा है तो हम लोग वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब है मिनिमम डायमीटर। सो फॉर अ प्लेन बार्स मतलब कि मेन बार जो होते हैं उसमें प्लेन बार और डिफॉर्म बार, प्लेन बार मतलब कि Fe 250 एंड डिफॉर्म बार मतलब कि Fe 415, राइट। अगर प्लेन बार्स है तो हमें 10 mm डाया मिनिमम यूज करना है। ठीक है, हम लोग प्लेन बार 8 mm डाया के नहीं यूज कर पाएंगे। और डिफॉर्म बार है वो हमें 8 mm डाया प्रोवाइड करना है मेन स्टील के अंदर। ठीक है, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हम लोग अगर Fe 250 मतलब कि प्लेन बार यूज कर रहे हैं तो वो मिनिमम हमें 6 mm यूज करना है। अंडरस्टैंड। और डिफॉर्म बार्स भी हम लोग 6 mm के प्रोवाइड करेंगे। तो मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार इन अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील विल बी 6 mm डाया। अब हम लोगों ने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर लिया, उसके बाद हमें चेक फॉर क्रैकिंग करना पड़ेगा। तो चेक फॉर क्रैकिंग के लिए दो क्राइटेरिया है जो आपको IS 456-2000 पेज नंबर 46 पे दिए हैं, जिसमें आपके मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के अलग अलग क्राइटेरिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अ मेन स्टील क्राइटेरिया। सो मेन स्टील क्राइटेरिया में है 3D और 300 mm। इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी तो उससे हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो 3D मतलब कि लेट्स से कि हमारी डेप्थ मैंने अभी बोला था कि 100 mm है, तो 3D मतलब 300 mm हो गया। और दूसरा क्राइटेरिया है 300। सो ये दोनों में से स्मॉलर मतलब दोनों तो सेम ही है। अगर 300 mm से हमारी जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड अ स्मॉलर ऑफ दिस टू वैल्यूज। और सेम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए वैल्यूज है 5D एंड 450 mm। इन दोनों में से जो स्मॉलर, जैसे कि 5D तो 500 होगा और 450 mm, सो 450 mm स्मॉलर वैल्यू है तो हम लोग जो स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे वो 450 mm से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, नाउ चेक फॉर क्रैकिंग हो गया। उसके बाद हमें करना है चेक फॉर डिफ्लेक्शन। अगेन चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए हमें ये देखना है कि अलाउेबल L/D = 20 × MF, ये आगे हम लोगों ने जो इक्वेशन यूज़ किया था।
ठीक है। MF कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको बता दिया है। सो इफ MF इज ऑब्टेन फ्रॉम द फिगर नंबर 4 पेज नंबर 38, फाइंड द एक्चुअल L by D। एक्चुअल L by D देखना है और अलाउेबल L by D की वैल्यू देखनी है। सो इफ एक्चुअल L by D इज लेस देन अलाउेबल L by D देन इट इज ओके, बट if actual L by D is greater than allowable L by D then that is not okay, right? उसके बाद हमें करना है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। सो डेवलपमेंट लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी 6th चैप्टर में, मतलब कि इसके आगे के यूनिट में हम लोगों ने देख लिया था कि हाउ टू फाइंड आउट द डेवलपमेंट लेंथ। सो उसके लिए चेक करना है। सो LD शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.3 m1 अपॉन v प्लस L0। ये इक्वेशन से हमें जो LD मिल रहा है, ठीक है, ये चेक करना है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और LD इज इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ BD, जिसमें सिग्मा एस है 0.87 FY। ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली IS 456-2000 पेज नंबर 42 और SP16 तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो अलाउड नहीं है, तो आपको वो देखना ही नहीं है। 50% steel is bent up near the support, so therefore find the MR for 50% of steel only। so हम लोग जो MR फाइंड आउट करेंगे, so वो हमें 50% ऑफ द स्टील के लिए ही फाइंड आउट करना है, मतलब कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे V है shear reinforcement at support and L0 है sum of anchorage beyond the center of the support। so वो होगा D और 12 डाया। सो टेक L0 एज अ स्मॉलर ऑफ दिस टू वैल्यूज। अगर D है आपके 100 और 12 डाया मतलब 10 mm डाया के आपके बाहर प्रोवाइड किया है, तो 10 इंटू 10 120। सो 100 एंड 120 में से 100 कम है, सो L0 हम लोग लेंगे यहाँ पे 100, राइट। और फॉर अ मेन स्टील एरिया ऑफ द स्टील शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 300 mm स्क्वायर, देन यूज 10 डाया बार्स, मतलब कि 10 mm डाया बार्स यूज करने हैं। और अगर AST आपका है 300 mm से लेस देन हमें क्या यूज करना है, 8 डाया बार्स। सेम एज फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, अगर आपका AST 200 mm से ज़्यादा है तो हमें 8 डाया बार्स, मतलब कि 8 mm डाया बार्स यूज़ करना है। और अगर हमारा AST डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में 200 mm से कम है तो हम लोग 6 mm डाया बार्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ये IS को 456 के क्लोज के हिसाब से है, ये हिंट है। इसको अगर हम लोग यूज़ करके करेंगे तो हमारी चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ है वो ओके ही आएगी, ठीक है। सो ये मैंने आपको पूरा थियोरेटिकल पार्ट समझा दिया है। सो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये थियोरेटिकल पार्ट को यूज़ करके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो विद द एग्जाम्पल आप ये इसको कंपेयर कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग दिस लेक्चर।